آج ہم کلام کے حصے میں سے بانٹنے کو ہیں کہ کیا آپ ایک بات کو بار بار سوچتے جا رہے ہیں، کیسے اس پر غالب آئیں۔ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، پہلی چیز ہم مل کر دیکھنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ جو ہے ہم بہت ساری جو ہے باتیں جو ہے یا ایک بات ہی جو ہے ہم بار بار سوچتے جا رہے ہیں، میرا اپنا گھر نہیں ہے، میرے جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی، میرا جو ہے ویزا نہیں لگ رہا۔ بہت دفعہ جو ہے ہم ایک ہی بات جو ہے وہ سوچتے جاتے ہیں، یا وہ میرے بارے میں جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا، مجھے ان کو ایسا کہنا چاہیے تھا۔ ہماری ذہن میں ہی ہم جو ہے وہ کشمکش ہماری رہتی ہے، ہم ایسی باتیں سوچتے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسی باتیں سوچ کر آپ کو ڈپریشن کا آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند جو ہے آج ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں آج ان سے باہر نکلنا ہے۔ ایسی سوچیں جو ہیں وہ آپ کو بیمار کر رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ جب آپ ایک ہی بات پر بار بار سوچ رہے ہیں، آپ کو اس وجہ سے جو ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ خداوند جو ہے وہ آپ سے کلام کر رہا ہے کہ آپ پازیٹیو ہوں، ان باتوں پر سوچیں۔ پہلی چیز ہم مل کر دیکھتے ہیں، کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے پازیٹیو سوچیں، ان باتوں کو سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کہا ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہ ہو۔ اور پازیٹیو ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اچھے کی جو ہے امید رکھ رہے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، وہ چیزیں جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں، خداوند چاہتا ہے ہم ان کو دیکھنا شروع کریں، ہم ان کے بارے میں پازیٹیو بولنا شروع کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک شفا نہیں پائی تو آپ کہیں کہ خداوند مجھے شفا مل گئی، خداوند تیرے مار کھانے سے، تیرے لہو بہانے سے میں نے شفا پائی۔ کئی دفعہ جبران لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی نہیں، اگر ان کو کینسر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کینسر ہے ہی نہیں۔ تو کئی دفعہ اوور فیتھ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کہ جو لوگ جو ہے وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ بری ہے۔ تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کینسر نہیں ہے، کینسر ڈائگنوز ہوا ہے لیکن مجھے نہیں ہے، وہ کنفیس نہیں کرتے اور اس کے لیے پھر وہ دعا بھی نہیں کرتے، وہ یہی کہتے رہتے مجھے نہیں ہے۔ لیکن اگر جیسے آج ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی چیز ہوگی تو پھر ہی آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی میں بدروہیں ہیں، اس کو پتا ہے کہ ہاں مجھ میں جو ہے بدروہیں ہیں، وہ اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، خداوند تو مجھے پاک اور صاف کر، خداوند تیرے لہو بہانے سے میں نے شفا پا لی، میں پاک اور صاف ہو گیا، خداوند تو نے میری ٹانگوں کو ٹھیک کر دیا، میری درد کو ٹھیک کر دیا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کی درد ہے، تو پھر ہی آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور پازیٹیو بولیں، دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں پازیٹیو سوچیں۔ اور کئی لوگوں کی نیچر جبران ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہی نیگیٹو ہے، انہوں نے ہر بات میں جو ہے وہ کہنا ہے کہ نہیں انہیں انج ہی کیتا، وہ ہے ہی انج دی، وہ نیگیٹو باتیں ہی کرنی ہے، اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں بھی۔ شاید اپنے بارے میں کم ایسے لوگ کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو بندہ ہے ہی ایسا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا نہیں۔ آپ اپنی آنکھ کے شتیر کو تو دیکھیں، کلام کہتا ہے کہ پہلے اپنی آنکھ کے شتیر کو نکال، بعد میں جو ہے دوسروں کی جو ہے اپنے تنکے کو نکال، بعد میں جو ہے دوسروں کے تنکے کو تو نکالے گا۔ ٹھیک ہے، خداوند جو ہے وہ ہمیں بار بار کلام میں بتاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے، دوسروں کو فرگیو کرنا ہے، فرگیٹ کرنا ہے، اور پازیٹیو جو ہے وہ سوچنا ہے، مثبت جو ہے وہ سوچنا شروع کریں کہ نہیں ایسے میں غلط سوچ رہی ہوں۔ آپ نے کلام میں لکھا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آپ نے کہنا ہے کہ نہیں خداوند میں تیرے لہو سے جو ہے پاک صاف ہو گئی ہوں، میں شفا یاب ہو چکی ہوں، میں نے شفا پالی ہے، یہ میرے جو سر درد ہے، مائگرین ہے، وہ یسوع کے نام سے جائے گا، اور میرے حالات ٹھیک ہوں گے، مالی حالات میرے ٹھیک ہوں گے، میں ایسی نہیں رہوں گی، میں ایسا نہیں رہوں گا، مجھے اچھی جاب ملے گی۔ آمین، پریز گاڈ۔ بہت خوبصورت گیتا یہ باتیں کری ہیں، اور اس کا آغاز کئی دفعہ کیسے ہوتا ہے؟ جو تو صبح سے اٹھنے ہیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا دن جو ہے تبھی ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جو آدھا پہلا گھنٹہ ہمارا گزرتا ہے، پہلا گھنٹہ گزرتا ہے، اگر نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو خیالات میں رہیں گے تو پھر سارا دن ہی ایسا رہے گا۔ لیکن اگر صبح اٹھتے ساری آپ ورشپ کو لگاتے ہیں، آپ خدا کی حمد کو سنتے ہیں، تعریف کو سنتے ہیں، ایمان آپ کے اندر آئے گا، پیٹرول جو ہے وہ آپ کے اندر آئے گا ایمان کا۔ تو کلام میں لکھا ہے میرا راست باز بندہ ایمان کے ساتھ جیتا رہے گا۔ اس لیے پازیٹیو سوچ، پازیٹیو خیالات ایمان کے ساتھ بڑھیں گے۔ اور ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ ایمان خدا کے کلام کو سننے سے، پرستش کو سننے سے، ورشپ کو سننے سے اپنے گھر میں۔ اگر صبح اٹھ کے گانے لگ رہے ہیں،
اگر صبح صبح اٹھ کر خبریں صرف سنی جا رہی ہیں، اگر صبح صبح اٹھ کر حالات حاضرہ کا نظر آ رہا ہے، تو پھر ایمان نہیں بڑھے گا۔ تو ایمان کو بڑھانے کے لیے، پازیٹیو سوچ رکھنے کے لیے جو پہلی بات گیتا کری ہے، اس کے لیے کلام کا سننا صبح صبح لازمی بات ہے۔ صبح اٹھیں، ورشپ کو سنیں۔ آج سوال کریں اپنے آپ سے کہ میں پہلا گھنٹہ اٹھ کے کیا کرتا ہوں؟ میں صبح اٹھ کر پہلا گھنٹہ کیا کرتی ہوں؟ تو آپ کو فرق پتہ لگ جائے گا، اور پھر کہیں کہ اگر میں ایک پہلا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ خدا کی حضوری میں گزاروں تو کتنا اچھا ہوگا۔ صبح اٹھیں، کلام کو پڑھیں، کلام کو سنیں، ورشپ لگائیں، باقی سارے کام ہوتے رہیں گے۔ ہو جانے نے کو پہلے گھنٹے دے وچ نہیں سارے کام ہو جانے، ہو جائیں گے سارے کام دوسرے بھی۔ خدا کی حضوری میں گزاریں۔ کلام میں لکھا ہے، بائبل مقدس میں اگر آپ میرے ساتھ نکالیں، خدا کے کلام کو نکالیں گے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور 5ویں آیت، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کے فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ بہت ضروری ہے بہنوں بھائیوں کہ ہماری زندگی میں ہر ایک تھاٹ جو آتا ہے، خیال آتا ہے، ہمارا ذہن جو ہے اس میں ہزاروں لاکھوں خیالات ہر روز چلتے ہیں، ہر روز ہزاروں لاکھوں تھاٹس، خیالات چلتے ہیں۔ اب ہر نیگیٹو تھاٹ جو ہے، نیگیٹو خیالات جو ہے، ایک تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کبھی نیگیٹو تھاٹ خدا کی طرف سے نہیں آئے گا، کبھی آپ کے جو پازیٹیو نہیں ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، نیگیٹو تھاٹ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ ہر تصورات، جو تصور ہوتے ہیں، تصور کیا ہوتا ہے کہ وہ ریالٹی ہے نہیں، وہ حقیقت ہے نہیں گیتا، لیکن وہ سوچ رہے ہیں اوہو اے میرے خلاف آ گلا کرتا ہوں، اب میرے خلاف آ گلا کر دی ہوں۔ جیسے آپ نے پہلے بتایا ہے، آپ شیئر کرے تھے، لوگ اپنے خیالات سے، تصورات سے، وہ ریالٹی ہوتی نہیں ہے، وہ حقیقتاً ہوتا نہیں ہے ایسے، لیکن وہ فلمات جو فلمیں جو ہے ریالٹی نہیں ہے، وہ اپنی فلم چلا رہے ہوتے ہیں ذہن میں۔ ایسے لوگ ہیں، ایسے زمین پر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی فلم اپنے ذہن میں چلا رہے ہوتے ہیں۔ اوے اوتھے میں جاواں گا، میں نہ انج نہ ہو جائے، اوتھے میں جاواں گی، اوتھے انج نہ ہو جائے، اوتھے وہ انج نہ کر دے، کتے انج نہ ہو گئے، کتے جنگ نہ لگ جائے، کتے ساڈے گھر چ بمب نہ بج جائے، کتے میرا خامن کسی بڈھی دے نال نہ بھج جائے، کتے میری بڈھی کسے خامن نال نہ بھج جائے، شک کی بنا پر، اور کہیں میرے بچے برباد نہ ہو جائے، میرا یہ نہ ہو جائے، اگلے ماہ میری نوکری نہ کہیں چلی جائے، کتے منڈے دی بجائے کڑی نہ ہو جائے۔ یہ سارے تصورات، خیالات ہمارے ذہن میں چلتے رہتے ہیں۔ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ دسو سچی طریقے نا چلتے نے نا، منو گے کہ نہیں؟ چلتے نہیں یہ سارے۔ اب ان کو کیا کرنا ہے؟ اور ہر ایک اونچی چیز کو، یہ اونچی چیزیں کیا ہے؟ پہلی بات تصورات کو، جو خیالات ہے، پھر اونچی چیزیں جو ہے پرائیڈ ہے انسان کا، تکبر ہے انسان کا۔ یہ تکبر جو ہے نا، یہی پہلا گناہ تھا جو شیطان نے کیا، اور اس نے کہا میں بکری نہیں ہوتی جی میں کری جاندی ہے، انجی شیطان بھی میں کری جاندہ ہے۔ او میرے بغیر انج نہیں ہونا، او منوں تے میرا نہیں نہ لیا، او میرے کو دعا نہیں کرائی ہے، او میرا نہیں نہ لیا، او میری نہیں گل منی ہے، او میں کتے۔ تو میں جو ہے نا، یہی انسان کو یہ اونچے خیال ہے، یہ پرائیڈ ہے، یہ تکبر ہے۔ تو تکبر کو نیچے کرنا ہے، اس کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف ہے، وہ خدا کے برخلاف ہے۔ پرائیڈ خدا کو نہیں پسند، تکبر خدا کو نہیں پسند۔ جلال صرف خدا کو ہے، کسی انسان کو نہیں ہے جلال، کسی شخص کو نہیں ہے۔ آج ہم زندہ ہیں تو صرف خدا کے فضل سے زندہ ہے، اور ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو ہم نے ڈھا دینا ہے، ان ساری چیزوں کو ڈھا کر، اور ان خیالات کو قید کر کر، کیپچر کر کر، وہ مسیح کا فرمانبردار کر دینا، اس کو یسوع مسیح کے تابع کر دینا ہے، اور صرف یہ صلیب کے وسیلہ سے ہوگا۔ ایماندار یہ کام کر سکتا ہے، کس کے وسیلہ سے؟ پہلی بات، اس کی یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے، اور روح القدس کے وسیلہ سے۔ روح القدس مہر کر دے گا جب آپ اس کو قید کر رہیں گے، جب صلیب آپ کے اندر ہے، جب آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے اس سوچ کو نہیں، جب آپ صلیب کو تکنا شروع ہو جائیں گے، جب آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہے، کوئی گندا خیال آ رہا ہے، کوئی بری سوچ آ رہی ہے، تو آپ کے سامنے صلیب ہے۔ آپ پھر کلام کو پروکلیم کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، آپ پھر کلام کو بول رہے ہیں اپنے منہ سے۔ اگر شیطان آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جلد مر جائیں گے، آپ کا خاندان بھی مر گیا تھا،
ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਦੀ ਵੀ हार्ट अटैक ना हुई सी, और तेरे ताए दी भी हार्ट अटैक ना हुई सी डेथ, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और खुदा के कामों का बयान करूंगा। ये कलाम की आयत है, आप ये कहेंगे। लोग आपको ये कह रहे हैं ओ हालत बहुत बिगड़ चुकी है तेरी, और तेरे तो डायलिसिस होने हैं, और तेरा तो ये होना है, अब तेरी हालत जो है वो ठीक नहीं है। आप ये कहेंगे मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीऊंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। दिस इज फेथ, दिस इज पॉजिटिव फेथ, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्पीक। और हमें ये बोलना है, हमें बात करनी है। सच्चाई हो सकती है, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और सच्चाई यीशु है, सच्चाई उसका कलाम है। यस आई एम हील्ड। पिछले दिनों की अभी बात है कि मैं जुकाम फील कर रहा था, मेरे गले में बैक्टीरिया लग रहा था, और मुझे था ये प्रॉब्लम, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, मुझे मसला था। तो मैंने उसी टाइम मैंने शहद भी पिया। ऑफ कोर्स मैं गर्म पानी में शहद पी रहा था, जो खा पी सकते हैं वो करें, कोई बात नहीं। और साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं किल करता हूँ यीशु के नाम से इस बैक्टीरिया को, मैं इसको यीशु के नाम से किल करता हूँ। कई लोग कहते हैं जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, पर 8 दिन तो कितने नहीं गया है, कई कहते हैं ऐसे, दुआ नहीं करने की जरूरत, वो कहते हैं कोई दुआ की जरूरत नहीं, 7-8 दिन इंज ही लग जाने ने। एक दिन के बाद ही मैं ठीक हो गया था यीशु नाम, एक दिन के बाद ही ऐसा हुआ, ठीक हो गया यीशु के नाम में, और फिर अगले दिन प्रोग्राम किया यीशु के नाम में। तो ये लिविंग टेस्टिमनीज है, ये खुदा काम करता है। जो हम खुदा का कलाम आपको सुना रहे हैं, ये कहानियां नहीं है, ये हमारे तजर्बात है। यीशु कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जिब्रान, जैसे आपका एक्सपीरियंस हुआ है कि आप एक दिन बाद ही ठीक हो गए, तो पर कोई ये ना आप सोचना शुरू कर दे कि पास्टर जिब्रान एक दिन बाद ठीक हो गए, तो मैं क्यों एक दिन बाद ठीक होया। आपका ईमान है, उनका अपना ईमान है, और आपकी सिचुएशन फर्क है, उनकी सिचुएशन फर्क है। खुदा जो है कई दफ़ा हमारे ईमान को टेस्ट करता है, हमारे ईमान को देखता है कि हम कितना लॉन्ग जो है वो जा सकते हैं। वो कभी भी हमें उस आजमाइश में नहीं डालता जो हमारी ताकत से जो है वो बढ़कर है, वो जो जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, खुदावंद हमें ऐसी आजमाइश में नहीं डालता। तो इसीलिए हमने जो है उस पर स्टेडफास्ट रहना है, हमने कहते रहना है, प्रोक्लेम करना है उसको, जिसको इंग्लिश में जो है प्रोक्लेम कहते हैं। हमने उसको नारे लगाते रहना है, अपनी जुबान से इकरार करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि निजात का इकरार जो है वो दिल से किया जाता है, लेकिन उसका इकरार जो है वो मुंह से किया जाता है। ईमान लाना दिल से होता है, लेकिन उसका इकरार जो है वो मुंह से, जुबान से जो है वो हम करते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है उसको बोलना, जैसे पास्टर जिब्रान ने कहा कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। दूसरी चीज है कि हम मिलकर देखें कि खुदावंद ने हमारी जिंदगी में कितने बड़े बड़े पहले काम किए हैं। हम देखें, जब हम इन ख्यालात को सोचते रहते हैं कि मुझे जॉब मिलनी नहीं, मुझे जो है मेरे हालात कभी ठीक होने नहीं, तो हम सोचे चीज़ों को कि खुदावंद ने पहले भी हमारी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, जिसकी हम हर रोज़ जो है वो गवाहियाँ सुनते हैं। हर रोज़ खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करता है, हम उन बातों के बारे में सोचें। आए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं मत्ती और उसका 6 बाब, नए अहदनामे में से मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब 25वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमने देखा है कि खुदा का कलाम हमें साफ साफ बताता है कि हमने फिक्र नहीं करनी, और मैं समझती हूँ कि ये नेचुरल चीज़ है कि जब आपके हालात ठीक नहीं, आपके सामने बिल पड़ा हुआ है बिजली का, जो कि आजकल बहुत हज़ारों में जो है वो बिल आ रहे हैं, और जब आप 12,000 जो है वो कमा रहे हैं, 16,000 का बिल आया है, तो आप कैसे जो है उसको पे करेंगे? आप फिक्रमंद होते हैं, और ये नेचुरल चीज़ है। उस वक्त में आपने कहना है कि खुदावंद ये बिल तेरे सामने है, खुदावंद तू खुदावंद मुहैया पे करने पे कादिर है, मेरी आस मेरी उम्मीद खुदावंद तुझ पर है।
तू सब कुछ कर सकता है खुदावन, तुझसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मेरी आस तुझ पर है। आपने बिल वो खुदावन के सामने रखना है और कहना है कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने पहले भी जो है ये मौजज़ा किया मेरे साथ, तूने मुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दी, तू मेरा छुपान है और अभी भी है खुदावन तू ही ये करेगा। आमीन। हमारी जिंदगी ये मौजज़ा हुआ, हम फाइनेंशियल मौजज़ा हुआ जो हमने कुछ दिन पहले जो है वो गवाही जो है आपके साथ बांटी कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा जो है फाइनेंशियल मौजज़ा जो किया, जो हमें बहुत ज़्यादा उस टाइम पैसों की ज़रूरत थी और हमारे पास थे नहीं कि हम जो है वो पैसे अदा कर सके, बिल अदा कर सके। तो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा मौजज़ा किया कि हम एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे, जहाँ से हमें पैसे मिले खुदावंद ने मुहैया किए, खुदा ने वो मुहैया किए, ना किसी इंसान ने हमें मुहैया नहीं किए, बल्कि खुदा ने हमें वो मुहैया किए। हम दिल से खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और इसी तरह खुदा आपके लिए भी मौजज़ा करेगा। तो आपने ज़रूर ये जो है लिस्ट बनानी है, उस वक्त में जानना है, लिखें। स्पेशली अगर आप लिख सकते हैं, किसी बच्ची को बुला के आप लिख सकते हैं खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में इस टाइम में ये काम किया और हवालों को लिखें। तीसरी बात है कि आप हवाले लिखें, जो खुदावंद के कलाम में हवाले लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शिफा नहीं पा रहे, आप सोचते जा रहे हैं कि मुझे जो है वो शिफा नहीं मिल रही, कैसे जो है वो मैं शिफा को पाऊंगा, तो आप लिखें जैसे खुदा के कलाम में जो है वो लिखा हुआ है कि ऐ मेरी जान तो खुदावंद की बड़ाई कर और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। इसको बोले खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने भी जो है कलाम के जरिए से शैतान पर खुदावंद गालिब आए। शैतान ने जब खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश ली तो हमें मत्ती 4 बाब में नजर आता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु ने कहा कि कलाम में ये लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, लिखा है खुदावंद ने कहा। तो इसीलिए हमने भी कहना है कि ये लिखा है, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे कभी ना छोड़ेगा, तू मुझसे कभी दस्तबरदार ना होगा, खुदावंद तू मेरे साथ है, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है मजबूत हो जा, खौफ ना कर। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू है खुदावंद मैं तेरी रास्तबाजी हूँ, तू है खुदावंद मेरी रास्तबाजी है। खुदावंद ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शेगा, तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पाई, तेरे कलाम में लिखा है। तो आपने बार बार खुदावंद को उसका कलाम जो है रिमाइंड करवाना है। खुदावंद कहता है कलाम में लिखा है मुझे याद करवा। खुदावंद चाहता है कि उसके प्रॉमिसेस जो हैं, जो खुदा के कलाम में है, उसके वादे जो है आप उसको रिमाइंड करवाएं, आप उसको याद करवाएं कि खुदावंद तेरे कलाम में ऐसा लिखा है, मैं इस पर ईमान रखता हूँ, खुदावंद तू मुझे शिफा देगा। और खुदावंद ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। वो अपने कलाम की सबसे ज्यादा जो है अजमत रखता है, उसकी जो है कदर करता है खुदावंद। जब आप उसका कलाम बोलेंगे उसमें पावर है। आपका देखिएगा ईमान कैसे अपलिफ्ट होता है आप जब कहेंगे कि मैंने शिफा पा चुकी। मेरे कुछ दिन पहले की बात है, मुझे जो है एलर्जी थी, जब मैंने ये गवाही पहले भी बांटी है, तो मैं कहना शुरू हो गई कि खुदावंद तू मुझे शिफा देगा, खुदावंद तू मेरी शिफा है, तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पा ली, मैं शिफा पा चुकी हूँ, तेरा शुक्र तूने मुझे शिफा दे दी। फिर भी मुझे छींकी आती जा रही थी, लेकिन मैं कंटिन्यूली ये बोलती जा रही थी और साथ ही जो मेरा माइंड था जो कि था कि नहीं मुझे बहुत छींकें आ रही हैं, मुझे एलर्जी हो गई है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सारा जो है वो डाउन चला गया। जब मैंने ईमान जो है बोलती गई, वो मेरा ईमान अपलिफ्ट होता गया और मेरा जो शक था सारा और जो सारा बेतकादी थी वो यीशु के नाम से डाउन जाती रही। हालेलुया। और मैं पॉजिटिव जो है वो बोलना शुरू हुई। तो हमने जो है खुदा के कलाम को बोलना है, उसमें पावर है। प्रेज गॉड, आमीन। जिस तरह गीता बयान करी है, कलाम में लिखा है मत्ती उसका 6 बाब और 34 पे लिखा है, बस कल के लिए फिक्र ना करो क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा, आज के लिए आज का ही दुख काफी है। कल की फिक्र जो है खुदा करता है, हमें आज की फिक्र करनी है और वो भी खुदा को दे देनी है। गॉड टेक केयर्स फॉर पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे। हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे उन बातों को भूल सकते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो आपको पता है कि आप एक बात को बार बार सोचे जा रहे हैं, कैसे उस पर गलबा हासिल कर सकते हैं एक बात पर, और वो नेगेटिव बात है, पॉजिटिव पर नहीं आप सोचते जा रहे, नेगेटिव बात को सोचते जा रहे हैं, कैसे गलबा हासिल कर सकते हैं? पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे। नेगेटिव आपके दोस्त हो सकते हैं,
वो आपको कहेंगे तो यार दुआ करके की करना, पादरी ते बस कहंदे ही आ रहे ने, पादरियां दी किहड़ी गल है, पादरी ते आप ही आ करदे ने, वो आ भी करदा है, वो आ भी करदा है। जिसने जो करना है, जिसने जो बोना है, उसने वो काटना है। जो काम जो गलत करेगा उसको उसका जो है वो सजा मिलेगी। तो अगर आप सही करें काम, आप तो ठीक करें काम, आप पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे। आपको पता है कि नेगेटिव लोग कौन है, आपको पता है कि यार ये शख्स जो है हर बात से मुझे नेगेटिव कहता रहता है, उसके साथ दोस्ती नहीं करनी है आपने, उस माहौल में नहीं बैठना, उस एटमॉस्फेयर में नहीं बैठना। मैंने कई दफा गीता इस बात को कहा है कि अगर आप सिगरेट नहीं पीते होंगे लेकिन आप ऐसे कमरे में चले जाएंगे जहां पर जो है वो सिगरेट पीने वाले हैं, तो आप नहीं भी पी कर आए ना सिगरेट, तो आप जब उस कमरे से बाहर आएंगे तो आपके कपड़ों से सिगरेट की स्मेल आएगी। क्यों? आप उस एटमॉस्फेयर में बैठकर आए थे, आप उस माहौल में बैठकर आए थे जहां सिगरेट पीने वाले लोग हैं, और उस धुएं की वजह से आपके कपड़ों में भी स्मेल आ गई। अब किसी के पास आप बैठे होंगे बाद में, तो वो कहेगा क्या तू सिगरेट पीने वाला है? आप कहेंगे नहीं, मैं तो नहीं पीने वाला, लेकिन वो कहेगा हाँ तू पीता है, क्योंकि तेरे कपड़ों में खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है। क्या आप ईमान के एटमॉस्फेयर में बैठते हैं? मैं कई इबादत में जाता हूं, गीता और मैं, हम जब हजूरी में से उठकर आते हैं तो फिर पता चलता है। इबादत में जब आप निकल के आते हैं तो आपको पता चलता है कि आप हजूरी में बैठ कर आए हैं, फिर आप फ्रेश होते हैं, आपको जो है वो आप विजन अपलिफ्ट होते हैं। खुदा आपको जो है वो अपलिफ्ट करता है जब ईमान के एटमॉस्फेयर में बैठे हैं। आप इस इबादत को देख रहे हैं, यहां से ईमान आ रहा है, यहां से खुदा का कलाम आ रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जुमेरात की दुआया इबादत को देखकर डिप्रेस हो जाएं, आप अपलिफ्ट ही होंगे, आपको खुदा का कलाम अपलिफ्ट ही करेगा। जब आप कलाम को पढ़ेंगे, चैनल्स को देख के वर्शिप को सुनेंगे, टिकटॉक पर खुदा के कलाम को सुनेंगे, तो फिर अपलिफ्ट होंगे आप, आपका ईमान बढ़ेगा। तो अगर आपके दोस्त, आपका अंकल, आपकी आंटी, आपका कोई शख्स जो नेगेटिव है, उन्होंने अपनी जिंदगी जो काट दो, डिलीट कर दो। कुछ लोगों को आपको डिलीट करने की जरूरत होती है, और वो आपकी वक्त को चोरी कर रहे हैं, वो आपके वक्त को चूस रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को ले रहे हैं। डिलीट कर दो उनको, आपके पास उनके लिए वक्त नहीं है। आपके पास उन लोगों के लिए वक्त है जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो आपकी इंकरेजमेंट का बायस है, तो उन लोगों की। और तीसरी बात जो है, आपको जो है माफ करने की जरूरत है, माफी की जरूरत है, फॉरगिवनेस, माफी की जरूरत है। हम कलाम का एक हवाला पढ़ेंगे। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा है, खुदावंद अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। आमीन। इसका मतलब है कि मुआफी का जो लेवल है वो बहुत बढ़कर है, क्योंकि यीशु हर रोज हमें मुआफ करता है। 7 के 70 बार को मल्टीप्लाई कर लेना, जितने भी बनते हैं वो नंबर, उससे कई बढ़कर यीशु ने मुझे और आपको हर रोज माफ किया। कई बढ़कर बहुत बड़ा नंबर होगा। जब से आप पैदा हुए हैं, जब से मैं पैदा हुआ हूं, तब से लेकर आज तक हम कमजोरियां और गुनाह करते आते हैं। तो अगर यीशु मसीह ने हमें लाखों करोड़ों दफा माफ कर दिया है, तो हम क्यों नहीं माफ करते? फॉरगिवनेस विल ब्रिंग अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। फॉरगिव करना और फॉरगेट करना, मुआफ करना और भूल जाना, ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने और गीता ने कई बार गवाहियां दी हैं, कई लोगों ने जो हमारे साथ बुरा किया। बहुत सारे ऐसे कई लोग थे मिनिस्ट्री में, वर्किंग में, को वर्कर्स, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, दे डिड रॉन्ग विद अस। लेकिन हमारे दिल में यह है कि खुदावंद हम नहीं उनको, खुदा के पाक ने कहा आपने नहीं ऐसा करना, आपने उनके साथ बुरा नहीं करना। हमने घर में आकर रोए और खुदा से उनके लिए बरकत की दुआ चाहिए। जब बरकत की दुआ चाहिए तो खुदा ने खुद इंसाफ किया, खुदा ने उनको खुद साइड पर कर दिया जिन लोगों ने हमारे खिलाफ किया। और आज वही लोग जिन्होंने हमारे खिलाफ बात की, आज वही हमारे फाइनेंशियल पार्टनर हैं, आज वही हमारे लिए बरकत भी चाहते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि हमने अटैक नहीं किया, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने हमारे खिलाफ बुरी बातें कही, लेकिन हमने नहीं उनके साथ वैसा किया, हमने अटैक नहीं किया। हमारी जंग जो है खुदा लड़ता है, यहोवा नसी हमारी जंग लड़ता है। बारहा ऐसा हुआ कि हमने घर आकर सोचा इन्हों इंज दा जवाब देना चाहिए सी, लेकिन
खुदा के पाखरू ने हमारे मुंह को बंद कर दिया उधर, और हमने घर आके सोचा क्यों नहीं ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੇ ਉਹ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। खामोश रहना जो है वो ज्यादा कई दफा आपके लिए बरकत का बायस है। खामोश रहें। अगर दो शख्स खामंद और बीवी लड़ते जा रहे खामंद खामोश हो जाए, बीवी खामोश हो जाए। ये ना कोशिश करे कि मेरे अल्फाज आखिरी हो, आखिरी उच्ची आवाज मेरी ही होए, नहीं नहीं नहीं। ये सुमसी हम्बल हो गया, वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, वो आजिज बन गया। आजिजी में ही, झुकाव में ही बढ़ाव है। अगर झुक जाएंगे तो फल, झुके हुए दरख्त तो लगता है, कभी सरू नु एडा लम्मा दरख्त उन्होंने को फल लग गया नहीं, लेकिन झुके हुए दरख्त को फल लगता है। तो अगर हम मुआफ कर देंगे, ये हम्बलनेस की निशानी है, ये झुकाव की निशानी है। फॉरगिवनेस विल ब्रिंग ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में मुआफी बरकत लेकर आएगी। सो याद रखें कि जंग हमारे जहन में चल रही है अपने साथ ही। हम सोचते रहते हैं, हम ख्यालात करते रहते हैं, एक बात को सोचते जा रहे हैं, उस पर कैसे गलबा हासिल करना है। बिल्कुल। और जिब्रान, जैसे अक्सर मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम कई दफ़ा क्रिसमस के दिनों में ये याद करते हैं स्टोरी कि जब मुकद्दसा मरियम जो है प्रेग्नेंट थी और यूसुफ को जो है वो पता चला कि मुकद्दसा मरियम उनकी मंगेतर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो एकदम उनका जहन जो है वो शक की तरफ गया। और लेकिन वो उन्होंने जो है ये सोचा कि मैं इसको चुपके से जो है वो छोड़ दूंगा, मैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। हम मुकद्दसा मरियम को बहुत फोकस करते हैं, ठीक है, और अच्छी बात है क्रिसमस के दिनों में, लेकिन मुझे यूसुफ की इतनी अच्छी ये बात लगती है कि यूसुफ ने ये सोचा कि बेशक उसके मुताबिक जो है उसकी सोच तो ये थी कि मुकद्दसा मरियम ने बुरा किया, कुछ ऐसा किया जो मेरे साथ अच्छा नहीं था, वफादार नहीं रही मेरे साथ, लेकिन फिर भी उसने अपनी सोच में ही, क्योंकि वो एक रास्तबाज बंदा था, और उसने कहा कि मैं मरियम को जो है, जो मेरी मंगेतर थी, मैं उसको बदनाम नहीं करना चाहता। तो इसीलिए हर एक रास्तबाज बंदा जो है, जो मसीह में मैं और आप होकर जो है, मसीह में होकर हम रास्तबाज हैं, हमें भी दूसरों को ऐसे ही ट्रीट करना है कि हम उनको बदनाम ना करें। अगर कोई जो है हमें छोड़ के चला गया है, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, बेइंसाफी की है, बुरा किया है, हम सारे गांव में उसका चर्चा ना करते फिरे कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो ऐसा है बंदा, वो ऐसी बंदी है। हम जो है चुपके से जो है उसका फैसला जो है वो खुदा के हाथों में दें, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा इंतकाम लेना। कलाम में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। ये खुदावंद का काम है जो हम ना करें, ये खुदा का काम है, खुदा को करने दें। इंतकाम लेना, बदला लेना उसका काम है, हमारा काम क्या है? माफ करना। खुदा ने हमें कहा है कि माफ करें, जैसे उस नौकर ने जो है वो माफ किया। खुदावंद ने मिसाल दी कि एक नौकर को जो है उसके मालिक ने जो है वो माफ किया, लेकिन उसने आगे अपने नौकरों को जाके माफ नहीं किया और उनको जो है वो कैद में डाल दिया। तो खुदावंद ने कहा कि इस नौकर को भी चाहिए था कि जैसे इसके गुनाह जो है, इसका कर्ज जो है वो माफ हुआ, वैसे ही ये भी अपने नौकरों को, दूसरों को माफ करता। हालेलुया। खुदावंद आज चाहता है मुझे और आपको माफ करें। आपके तसव्वुरात जो है वो आपको कंट्रोल ना करें, बल्कि आप अपने तसव्वुरात को कंट्रोल करें। आमीन। तो आपके तसव्वुरात जो है कई दफ़ा आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं, हर टाइम आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं, तो याद रखें कि आपने उनको कंट्रोल करना। ये आपका जहन है, आपने उसको जो है सही राह पर लेकर आना है कि नहीं। जैसे ही आप सोच रहे हैं इन सारी बातों को, आपने कहना नहीं, मैं जो इन बातों को नहीं सोचूंगी, अब बस हो गई, इनफ, दैट्स इनफ। मैं जो हूँ अब खुदा के कलाम के बारे में सोचूंगी। जैसे कलाम में लिखा है, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे। तो आप सोचें उस टाइम में, क्या मैं जो शरीयत की किताब के बारे में सोच रही हूँ? खुदा ने तो कहा है कलाम में कि शरीयत की किताब के बारे में सोचते रहो, उस पर ध्यान लगाओ। मैं किस चीज़ों पर ध्यान लगा रही हूँ? तो खुदा के कलाम पर ध्यान लगाएं और माफ़ करें और पॉजिटिव सोचें। जैसे आज हमने सीखा, आप कैसे जो है इन सारी बातों पर जो है, जो बार बार आप सोच रहे हैं, उस पर गालिब आ सकते हैं। पॉजिटिव सोचने से आप गालिब आ सकते हैं। फिर आप जो है अपने माजी के बारे में देखें कि खुदावंद ने माजी में आपके साथ बड़े बड़े काम किए, आप उनके ज़रिए जो है गालिब आ सकते हैं। खुदा के कलाम में जो लिखा है आपके लिए, आप उसके ज़रिए जो है खुदा के कलाम पे, उन सोचों पर जो है वो गालिब आ सकते हैं। आप जो है सोचते रहें कि खुदावंद ने जो है मेरी ज़िंदगी में ये बड़े बड़े काम किए। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, उनके साथ उठे बैठें और कलाम को बोलें, प्रोक्लेम करें कि खुदावंद तेरे कलाम में ये लिखा है,
और दूसरों को माफ करें। आमीन। तो इन सारी बातों के जरिए जो है आप अपने जहन की जो जंग है उस पर गालिब आ सकते हैं। अपने तस्वुरात पे जो शैतान आपके दिल में डाल रहा है, आपके जहन में डाल रहा है, नेगेटिव थॉट्स पे जो है आप उस पे गालिब आ सकते हैं। यीशु नाम में आमीन। गॉड ब्लेस। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे, मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं हालेलुया तेरे कलाम की बातों के लिए, जो आज कलाम का बीज तूने बोया है इन जिंदगियों में, जिन्होंने आज तेरे कलाम को कबूल किया। फजल दे ताकि खुदावंद ये बीज बड़े फले, तरक्की करे और हमारी अमली जिंदगियों में इस कलाम पर हम चल सके। रुल कुदस तू इस बीज की हिफाजत कर, रुल कुदस तू मदद कर। तो इस बीज को, जो कलाम का बीज आज बोया गया है, कि हम उन पुरानी बातों को सोचते ना रहे, उन गलत बातों को, उन गलत तस्वुरात को सोचते ना रहे, बल्कि ऐ खुदावंद उनको कैद कर कर हम आज़ाद होते हैं आज यीशु के नाम से। आमीन। आज कोई भी शख्स है जो पुरानी बातों को सोच रहा है और इसके जहन से नहीं निकल रही, आज यीशु के नाम से आज़ाद करें, यीशु के नाम से आज़ाद कर। पुरानी सोच, पुरानी बातें जाती रहे और ये मुआफ़ करे एक दूसरे को जिस तरह तूने हमें मुआफ़ किया है। हम इनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे कलाम के वसीला से आज तूने हमें सैर और आसूदा किया है, तेरा शुक्र करते हैं। जितने लोगों ने शिफा पाई, निजात पाई, रिहाई पाई, मखलसी पाई, आज़ादी पाई कलाम के वसीला से, इसके लिए सारा जलाल हम यीशु तेरे नाम को देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। यीशु नाम में दुआ मांगकर पा लेते हैं। आमीन आमीन।